آید. ساقی از عهد و قراری ازلی برگشته، پسر فاطمه با تیغ علی برگشته. میرسد منتقم خون خدا بسم الله، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. بعد قد قامت مهدی چه نمازی بشود، دل و دل دارد ابراز و نیازی بشود. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و آل محمد بلندترین صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختارهم من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء والمنہاج البادی وکتاب الہادی مولتہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علا بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بدین المشہود وعلم المعصور وکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع. مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. صلوات باوز بلند. سب سے پہلے میں مولا کائنات کے بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مالک امام زمانہ سادات کا پرخلوص اہتمام نظر و نیاز صف عزا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سید رضی شاہ صاحب کو مالک صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ان کے رزق و عزت میں مولا اضافہ فرمائے. خالق صاحب کی دعا ہے آل محمد کا خالق مالک اللہ جو بھی حاجت شرعی ہے بھائی خالق صاحب کی اپنی بارگاہ سے مستجاب فرمائے. شبیر صاحب جنہوں نے یہ جگہ وقف کی UK میں ہیں آل محمد کا خالق جو حاجات شرعی ہیں اپنی بارگاہ سے مستجاب فرمائے. میرے بھائی حیدری صاحب جتنے سادات بزرگ علماء یہاں پر بیٹھے ہیں مومن عزادار ملنگ ماتمی اہل سنت جتنے جو بھی یہاں پر آئے ہیں آل محمد کا خالق سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ سے مستجاب فرمائے. نقیب ممبر سے لے کے جس سید نے اور مولانا نے جو بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دی پاک سیدہ ہماری اس حاضری سے راضی و خوشنود جائیں. تمام حاجات کی برابری کے لیے باجماعت درود بھیجیے محمد و آل محمد. اجازت ہے جی حضری صاحب آغاز گفتگو. سلامت رہا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ آباد مردہ آباد مردہ آباد. علی ولی اللہ 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 علی ولی اللہ. کرم چاہتے ہو جہاں خراب میں قبلہ کرم چاہتے
मालिक आपको सलामत रखे। इमाम ज़माना मेरे भाई की हिफाजत फरमाए। आगाज़ गुफ्तगू है और मेरे भाई ने कलम से रबाई शुरू की। मैं कलम पे ही हदीस सुनाता हूँ। ठीक, नबी ने फरमाया कि या अली, पूरी दुनिया के दरख्त कलमे बन जाएं, समंदर स्याही हो जाएं और दरख्तों के पत्ते वर्क बन जाएं, जिन्हों उनसे लिखने बैठ जाएं, तेरे फ़ज़ाइल की हद को पहुँच ही नहीं सकते। हद को पहुँच ही नहीं सकते। और जहाँ पे रात गुफ्तगू ठहरी, क़याम हुआ, वहीं से ही आगाज़ हो रहा है। और वो हम यहाँ पर थे कि नबी ने फरमाया, जो भी मेरे भाई अली की ज़ात पे, फ़ज़ाइल पे शक करेगा, क़यामत के दिन कब्रों से ऐसे उठेगा और अल्लाह के हजूर आएगा तो शयातीन उसके गले में आग का एक तोक डाले हुए होंगे और उसके मुंह पर थूक के कहेंगे, लानत हो तुझ पर जो अली पे शक करता था। सलामत रहे। यहीं पर थे, यहीं से ही मैं आगाज़, इसलिए मैं रात थोड़ा सा अटैच करता हूँ आपके जहनों में वो चीज़ आ जाए, रिवीजन के जहाँ पर छोड़ा था। खुदा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बादशाह अली को वो इज़्ज़त अता की है कि अक्ल इंसानी से मुकाम अली बादशाह कहीं बुलंदो बाला है। रसूल अल्लाह ने एक ही हज किया, हालात की वजह से इजाज़त नहीं मिली, दीनी मसरूफियात की वजह से वक्त नहीं निकाल सके। आखिर रसूल अल्लाह ने तय किया कि हज किया जाए। उस हज की खबर गिरदो अनवाह में फैल गई। लोग सर के बल रसूल अल्लाह के साथ हज करने के लिए जाना चाहते थे। ठीक, जब लोगों की तैयारियां शुरू हो गई, रसूल अल्लाह को भी इतला मिल गई कि जौक दर जौक आपके साथ हज पे लोग जाना चाहते हैं। आखिर काफिला तैयार हो गया। 26 ज़िकात 22 फरवरी बरोज हफ्ता असर के वक्त। अब जाके रही जो पीछे बैठे हैं, जरा वो भी मालिक सलामत रखे, जरा हिले जुलेंगे तो जिक्र अली में लुत्फ आता है। अजीजाने गिरामी कदर, काफिला तैयार हो गया। मदीने में जो काफिला तैयार हुआ तवाफ़े काबा के लिए, उसकी तादाद थी 90,000। रसूल अल्लाह ने साफ सुथरा लिबास पहना, हुजरा से बाहर तशरीफ लेके आए। दाएं देखा तो लोग, बाएं देखा तो लोग, सामने देखा तो लोग, पीछे देखा तो लोग। नबी पाक ने जब पुकारा तो लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा आई, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहता है, हर तरफ हजूम ही हजूम था। सहराओं में लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं गूंज रही थी। ये गदीर पर अली की विलायत का ऐलान होने वाला है। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा सबसे पहले अली की विलायत के लिए नबी ने लगवाया है। एक बाजमात सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझ रहे ना? अब स्टार ले रहा हूं, परेशानी की जरूरत नहीं है, मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूंगा। सैयद तैयार हुआ काफिला, रसूल अल्लाह 90,000 का काफिला लेके रवाना हुए। पहली मंजिल पर पहुंचे, मंजिल जुल हलीफा। यहाँ पर
मिकात है, हाजियों को ihराम के तरीके बताए जाते हैं, तवाफ़ काबा कैसे करना है, सारे अदब व आदाब से आगाह किया जाता है। मंजिल जुल हलीफा से काफिला पहुंचा मंजिल युलीमलम पर, मंजिल युलीमलम से रवाना हुआ, मंजिल अर्कुज़बिया पे आया, मंजिल अर्कुज़बिया से रवाना हुआ, मंजिल शरफ़ु सियाला पे आया, मंजिल शरफ़ु सियाला से रवाना हुआ, मंजिल मुतशई पे आया, मंजिल मुतशई से रवाना हुआ, मंजिल रूहा पे आया, मंजिल रूहा से रवाना हुआ, मंजिल सुकिया पर आया, मंजिल सुकिया से रवाना हुआ। बड़ी तवज्जो दोस्तों, मंजिल मुतशैयो और रूहा से जब काफिला रवाना हुआ है तो मंजिल अशाया पर आया, मंजिल अशाया से रवाना हुआ तो मंजिल जुमल पर आया, मंजिल जुमल से रवाना हुआ तो मुकाम अबवा पर आया, मुकाम अबवा पर आया तो पैगंबर ने, बड़ी तवज्जो, काफिले में 1.5 लाख से अबाव कर गए थे लोग। पैगंबर ने ज़ोहर और असर, मगरिब और इशा ये इकट्ठी नमाजें पढ़ी है। जब ये नमाजें पढ़ी है, जनाब अबू बकर भी थे, उमर फारूक भी थे, ज़ोहर और असर, मगरिब और इशा ये इकट्ठी पढ़ी है। अब तो एतराज ना किया करो, इकट्ठी क्यों पढ़ते हो? अगर हम पे एतराज करना है तो मेरा सवाल ये है, अगर ये गलत होता तो जनाब उमर फारूक कभी ना पढ़ते। तवज्जो, आगाज आगाज, तवज्जो। असहाब मौजूद है ना, गदीर पे सारे मौजूद थे, काफिला चल रहा है, असहाब ने इकट्ठी पढ़ी। जुमा के दिन 12:36 पर नौरोज के दिन काफिला मुकाम हजफा पे पहुंचा। मौजू रिसालत और तो मैं उसी पे ही हूं। कोई ये ना कह दे कल मुझे 1 महीना भी पढ़ाएंगे तो यही चलेगा। इमाम ज़माना का सदका और आपकी दुआएं, सईदों की दुआएं। हजफा पे पहुंचा दिन जुमा का, नौरोज का दिन। आयत आ गई, या अय्युर रसूल बल्लिग, मेरे नबी पहुंचा, मेरे नबी ठहर जा, अब पैगाम को पहुंचा। 11 मंजिलें तय की है नबी ने पीछे। अली की विलायत कोई सहलो आसान नहीं है। जो फुकरा होते हैं, कुलंदर हैं, औलिया है, उनकी भी फ़क्र में मंजिलें होती है। अली को पाने के लिए मार्फत की मंजिलें है। अजीज़ान गिरामी कदर, अब ऐलान हुआ कि मेरे नबी पैगाम को पहुंचाइए। हजफा के मुकाम पर दिन जुमा का था। आलम ज़र में जब अली की विलायत का हिद लिया गया, वो दिन भी जुमा का था, हजफा के दिन भी जुमा का था। तो मैं सोच रहा था पैगाम एक ही है, पैगाम एक ही है। अल्लाह ने दिन भी एक रखे हैं, अर्श पे भी जुमा रखा है, गदीर में फर्श पे भी जुमा रखा है। इन दोनों दिनों में आखिर मुमासलत क्या है? तो अल्लाह बताना यह चाहता है कि आलम ज़र में अली की विलायत का अहद लेकर अली दिखाया गया था। गदीर में मन कुंतुम मौला कह के अली मनवाया गया था। अली जुन वलीउल्लाह, सलामत रहे। या अली सलामत रहे। अजीज़ान गिरामी कदर, देखिए ये एक लुकमा होता, मैं अपने मौजू में ही रहूंगा मेरे भाई। मलंगों की जो लाइन है, आप सलामत रहें, बस यही कहूँगा। अल्लाह सलाम। मलंग फारसी जुबान का लफ्ज़ अक्लमंद को कहते हैं, अक्लमंद को। जिस अली का चाहने वाला अक्लमंद हो वो अली क्या होगा? इसलिए अली से पूछा गया, मौला आप क्या हैं? आपको चाहने वाला तो अक्लमंद है। फरमाया मैं अकल हूँ। मौला अकल क्या है? फरमाया वो मेरी विलायत है। जिसके पास विलायत है वो साहिब अकल है, जिसके पास अली नहीं वो जाहिल है। अक्ल जिसके पास है तो जाहरी बात है, जिसके पास अली होगा वो साहिब अकल होगा, वो बेवकूफ नहीं होता। मुकाम हजफा पे ये 4 रास्ते थे। मैंने आगे बड़े खूबसूरत जुमले कहने, बेदार रहिएगा। 4 रास्ते, शाम, इराक, मिस्र, मदीना। या रसूल बल्लिग, मेरे नबी पहुंचा,
नकीब मेंबर कह रहे थे मुबल्लिग विलायत अली, तो मैं कुरान से दलील दूंगा। अगर ये उन्होंने मेरे लिए लकब चुन ही लिया है तो मैं भी दलील दिया बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा। उन्होंने कहा मुबल्लिग विलायत अली तो लकब मिला है तो उसका हक भी अदा होना चाहिए ना। अजीजान गिरामी कदर या अय्युर रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका मिन रब्बिक, और मेरे हबीब इस पैगाम को पहुंचा जो तेरे रब की तरफ से तुझ पर नाज़िल किया गया है, तुझ पर नाज़िल किया गया है, पैगाम नाज़िल किया गया है। मौलाना आपकी समझ में इतनी सी बात नहीं आती, जिसकी विलायत का पैगाम नाज़िल हो वो खुद पैदा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? आप सलामत रहे हैदरी भाई। जिसकी विलायत का पैगाम नाज़िल, पैगाम खल्क नहीं हुआ, पैगाम तो साहिब विलायत उसका भी ज़हूर होगा, विलादत नहीं होगी। जो विलादत का कायल है उसे वो अंदाज कबूल, मैं ज़हूर का कायल हूं, मैं वरूद का कायल हूं। ये लफ्ज़ भी वैसे झुके हुए हैं और हैं नहीं, अली इससे भी बुलंद है। अब मैं इसमें नहीं जाता इख्तरा क्या है, एजाद क्या है, मेरा भाई कह रहा था। बहरहाल वहाँ पे ऐलान हो, तो मैं कहता हूँ जिसे भी मुबल्लिग कहलाने का इतना ही शौक है, पहले मिंबर पे आके विलायत की तबलीग करे, बाद में मुबल्लिग का लेबल लगाए। बाद में अगर तबलीग नहीं कर सकता तो मुबल्लिग फिर ना कहलाए। खुदा की कसम वही पर पैगंबर ने कहा बिलाल अजान दो, जो आगे गए बुलाओ, पीछे हैं साथ मिलाओ, जुमला सुनना। आवाज दी हय्या लाओ खैरुल अमल, बड़ा लतीफ जुमला। अब ये समझा के चलूंगा। मैं कहूं हैदरी भाई मेरे घर आइएगा, मेरे बच्चे का वलीमा है। कहते हैं जी ठीक है इंशाल्लाह। किस दिन? मैंने कहा 10 मार्च को, सपोज दैट आ जाऊंगा। ये आ गए, बाबा ओन शाह आ गए, बाबा शौकत शाह आ गए, अलामा साहब आ गए, मेरे कोई और दोस्त आ गए। घर आए तो आगे वलीमा नहीं कवाली थी। अब जरा सोचिएगा, ये मुझसे तो पहले शायद कुछ ना कहें, एक दूसरे की तरफ देखेंगे, ये क्या कार्ड वलीमे का, आगे हो रही है कवाली। अलामा साहब ने भी झूठ बोला, या कवाली करवानी थी, उन्हें शक था कि हम कवाली के कायल नहीं, इसलिए झांसा दिया। मैंने फिर दगा किया है ना, गलत बयानी से काम लिया ना हैदरी भाई। वलीमे की दावत है तो वलीमा ही होना चाहिए, कवाली का काम तो नहीं है। अजान में मस्जिद में खड़े होकर कहा जाता है हय्या लाओ खैरुल अमल, बुलाते हो हमें कि आओ अली की विलायत की तरफ। जब गवाही का वक्त आता है अली को छोड़ के हमें धोखा देते हो। हाँ बोल रहे अजीब अजीब मंतक है, मैं किसी को नहीं। अरे भाई तो यकीन कीजिए, तो आप सोचा कीजिए जब गवाही ना हो कि यार बुलाया तो था आओ विलायत की तरफ, तो जिस काम के लिए वलीमे के लिए बुलाया है आगे कवाली है, आप राजी नहीं होंगे तो जब विलायत अली का ऐलान नहीं होगा तो आप और मैं राजी कैसे होंगे? अज़ीज़ाने किरामी कदर, फिर अल्लाह ने कहा है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंस को इबादत के लिए खलक किया है। मासूम फरमाते हैं इबादत के लिए नहीं, तुम्हें हमारी मार्फत के लिए खलक किया गया है। और फिर अल्लाह ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिल कुमुल लैल इल्ला कलीलन, ऐ मेरे मोहम्मद रात को इतना क़याम न किया कर, आधा कर दे या आधे से भी घटा दे, तेरा ज्यादा खड़ा होना मुझे गवारा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तू आराम किया कर। भाई रात में ठंडक होती है, रात में सुकून होता है, गर्मी में तपश होती है, गर्मियों का मौसम हो रात में चैन मिलता है, रात में इत्मीनान मिलता है। मोहम्मद को रात को तो सुकून था, लेकिन गदीर में कहता है मोहम्मद खड़ा रहे, अली की विलायत पहुंचा, इधर कहता मेरी इबादत ना कर, इतना ही ना कर, कम कर दे, निस्फ कर दे, इससे भी घटा दे। अली की विलायत का पैगाम जलती और गर्म धूप और धूप में भी पहुंचा, वरना तेरी रिसालत नहीं रहेगी। तो क़यामत तक के लिए कुरान की आयत ने फैसला दे दिया है, अल्लाह अपनी इबादत में रियायत देता
अली की विलायत में गुंजाइश नहीं है, नहीं है। अली मौला, अली मौला। इस तरह नहीं, अगले पिछले सारे मेरे भाई बैठे हैं, मोमिन बैठे हैं, अदादार बैठे हैं। ये आयत नहीं है तो तब कोई खड़ा होकर मुझसे कह सकता है? नहीं कहा इतना क्याम ना किया कर, निसब कर दे, निसब घटा अली। और उधर कहता है गदीर में पहुंचा, उधर बादल बने हुए थे कि बारिश हो रही थी, धूप, इधर खड़ा रहे, रात को आराम कर। अब भी तेरी समझ में अली नहीं आता। रियायत अपनी इबादत में है, यानी उसकी इबादत में कमी कुताई हो जाए, अली को ना छोड़ा तो माफी देगा जरूर। अली को छोड़ के सजदे में ही मर गए तो जहन्नम भी भेजेगा जरूर, जहन्नम। अब सुनो तफसीर अनवारुन नजफ, जिल नंबर 2 हुसैन बख्श जाड़ा, तफसीर इमाम हसन अस्करी, यूपी रुस्तम नगर इंडिया की शाया। बादशाह अली फरमाते हैं, फरमान सुनिएगा, ये जो हक का प्रचार करने वाला हो ना, सही नमक हलाल जाकिर, उसके लिए मौला का फरमान है। सीधी सी बात है, सईदों के दादे का खा के यहाँ कुछ वहाँ कुछ, वो इस फरमान से बाहर है। मौला फरमाते हैं मन कवा, मन कवा। भाई ये इसका दोष नहीं है, अली की विलायत का लोड ही ऐसा है। ये यकीन कीजिए, मैं यकीन कीजिए, ये हर पत्थर नहीं बर्दाश्त कर सके। हाँ क्या कर रहे हैं मेरे भाई, मैंने कल बताया था ना कि जिन्नों उन पहाड़ों ने इनकार कर दिया था। पहाड़ नहीं, वो मोमन कितना बुलंद है जिसके कलम में अली है। पहाड़ों से मजबूत हैं आप लोग, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अज़ीज़ान गिरामी कदर, तेरे बादशाह अली फरमाते हैं मन कवा फिद्दीन मस्कीन ही ज़ईफ़न फ़ी मारफत ही अलन नासिबुल मुखालिफ फ़ा अफ़हमहु लुक्कनहुल्लाहु तआला यौमा युदला फ़ी कब्रिही अल्लाह रब्बी मोहम्मद रसूली व अलियो वली वल कुरानो हुज्जती व अदली वल काबा तो किबलती। मौला फरमाते सुनो, जिस मेरे चाहने वाले ने किसी ऐसे मोमिन को इतनी मार्फत अता की कि वो मोमिन मेरी विलायत के मुनकर से टकरा जाए। अब देखिए देखिए हजरी भाई, जो बंदा मोमिन को इतनी फहम फरास्त दे दे कि वो मुनकरे विलायत अली से आले मोहम्मद के दुश्मन से टकरा जाए, उसे दलीलें देना शुरू हो जाए, तो मौला फरमाते हैं जब ऐसा मेरा जाकिर, हमारा चाहने वाला, हमारा मुहिब या हमारा शिया दुनिया से चला जाता है, लक्कनहुल्लाहु ताला यौम युदला फी कब्र ही, अल्लाह ताला अपनी जुबान कुदरत से उसकी कब्र पे खुद तलकीन पढ़ता है। उसकी कब्र पे खुद अल्लाह तलकीन पढ़ता है और कहता है अल्लाह रब्बी मोहम्मद रसूली अलियो वली व अमीरुकुम, अली तेरा वली व अमीर है। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ मेरे अल्लाह, तू भी किसी से पूछ ले, गवाहियाँ 2 देनी है या गवाहियाँ 3 देनी है? तू कह रहा मैं अल्लाह रब हूँ, मोहम्मद रसूल है, अली तुम्हारा मौला है। अब पता चल गया जब अल्लाह को 2 नहीं 3 गवाहियाँ पसंद हैं, ये मौलवी अब्दुल्ला गोबे की उड़ा हुआ है। और फिर ऐसा बंदा जब दुनिया से चला जाए, वो आप भी हो सकते हैं, मोमिन, अतादार, मुहिब। फिर फरमाया अदलई तो बिल हुज्जते, अल्लाह कहता है तो कब्र में सोया रहे, तूने हक अदा किया है, तूने हक अदा। ऐसे फजाइल पढ़ते हैं तो सुकून मिलता है कि इतनी छूट, इतनी गुंजाइश, इतनी मोहब्बत है अली को आपसे कि आप जो मार्फत दे। फिर फरमाते हैं तेरे लिए अल्लाह ने जन्नत में आला दर्जे मुंतखब कर रखे हैं। ये किसके लिए? जो 3 गवाहियाँ दे रहा है। इन गवाहियों के सदक़े में आले मोहम्मद पे बुलंद तरीन सलवात भेजिए।
फिर मैंने सूरह काफी की तीसरी जिल्द से पढ़ा था ना कि मौला से पूछा गया, मौला दीन की बुनियाद कहा था ना हैदरी भाई, तो नमाज रोजा हज ज़कात पांचवा, तो मौला ने फरमाया था विलायत, जुमला आगे नया कहने जा रहा हूं, पांचवा है विलायत। मासूम से पूछा गया मौला नमाज, फरमाया अस्सलातु अमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। तेरा पीर अली फरमाता है नमाज दीन का सतून है, मेरी विलायत नमाज का सतून है। या अली या अली या अली। फिर असूल काफी जिल्दोइम, किताब अल कतरा जिल्दोइम, मौला फरमाते विलायत अली जन मकतुबातन जमीअन सहफुल अंबिया वल मुरसलीन व लन यबसल्लाह व रसूलहु इल्ला बिनबुव्वत मुहम्मद व विलायत अली इब्न अबी तालिब। मेरे दादा अली की विलायत हर नबी के सहीफे में लिखी है, हर किताब में लिखी हुई है। आदम से लेके ईसा तक कोई नबी नहीं बना है जब तक उसने अली की विलायत का इकरार नहीं किया है। पारा नंबर 25 है, सूरह अज़-ज़ख़रफ़ है, आयत नंबर 45 है, तर्जुमा सैयद फरमान अली का है। कुरान के हाशिए पर देखना, अल्लाह ने कहा था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्अल मिन अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलना। अभी भी इनसे पूछ तो सही इन्हें नबूवत किस बुनियाद पे मिली है, तो सब ने कहा था हम गवाही देते हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, अली हमारा मौला और अमीरुल मोमिनीन है। कुरान के हाशिए पर सैयद फरमान अली ने ना लिखा हो, कल पढ़ के आना, फिर मुझे रोकना जरूर। असूल काफी की जिल्द नंबर 2 में देखे देखना, अगर मिले ना मुझे बुलाना जरूर। अल कतरा में देखना, मिले ना मुझे बुलाना जरूर, मैं हवाले यहाँ पर रखूंगा। मौला फरमाते हैं मेरे जद मुस्तफा से पूछा गया कि किस बुनियाद पर, कहा 3 गवाहियों पर। तो आदम तेरा बाप है, उसने 3 गवाहियां दे, तू कैसा नालायक बेटा है, तेरे बाप का गुजारा तीसरी गवाही के बगैर होता नहीं। ये कौन सी नालायक औलाद है जो 2 पे तुली हुई है। अब ठीक है ना? मसला ही मज़ाहिब इस्लाम और हम में विलायत अली का है। तो जब हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम हैं तो उन्हें नबूवत नहीं मिली, बगैर विलायत अली के आपको और मुझे इज्जत कैसे मिल सकती है बगैर अली के? जितनी इज्जतें हैं ये मेरे बादशाह अली का सदका हैं, ये मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हैं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये शर्फ नहीं मौला के जाकिर का कि सैयद नीचे बैठा है, उनके दादा का जाकिर ऊपर बैठा है। सैयद इंतज़ार करे कि मेरे दादा का वकील आ रहा है, और वकील साहब आके इनके दादा को छोड़ के और दादाओं का जिक्र शुरू। तो बात पे लुत्फ की तो नहीं है ना। अज़ीज़ान किरामी कदर, बहरहाल पैगंबर ने कहा चलो मेंबर बनाओ। मेंबर बनाए या रसूलल्लाह, तारीख़ याकूबी जिल्द 2। मौला मेंबर फरमाया कोई कील हथौड़ी तो है ही नहीं। ठहरे, आसब बिन बरखिया ने तख्ते बल्कीस मंगवाया था, वो सुलेमान का वजीर, मेरा नबी सुलेमान से अफजल। या रसूलल्लाह मदीना है ही कितने किलोमीटर, मंगवा लें? फरमाया नहीं। जुमला सुना, नहीं तुम नहीं जानते, मैं दूर अंदेशी में देख रहा हूँ, बनाने दो लकड़ी का मेंबर। कहा या रसूलल्लाह नहीं बना सकते। रसूल ने मुस्कुरा के कहा होगा देख लो कितने से आने हैं, मेरी मौजूदगी में लकड़ी का मेंबर नहीं बना सकते, मेरी आंख बंद होने के बाद निजात का इमाम बनाने बैठ जाएंगे, वो बनाएंगे और बनाने बैठ जाएंगे। और वही किया, तारीख गवाह है। बहरहाल नहीं बना, प्लानों का मेंबर
देखिए प्लान फारसी जुबान का लफ्ज़ है। एक और हिकमत थी, मदीना से नहीं मंगवाया। शाह साहब के मैं यहाँ मजलिस पढ़ने आया, उन्होंने कहा क़िबला आज कुर्सी नहीं, मेंबर नहीं। तो मैं कहूँगा तकरीर कैसे करनी मैंने? ये कहें जनाब घबराने की ज़रूरत नहीं, चारपाई मंगवाई है। क्या आप उस पे बैठेंगे? मेरे औसान खता होंगे कि नहीं? चारपाई पे। क़िबला आपने तो बस पढ़ना है, तकरीर करनी है, लंगर लेना जाए चारपाई पे। अब ये मुझे चारपाई पे बिठा दें, हैदरी भाई चारपाई पे बिठा दें, मैं अरबी सारी पढ़ जाऊं, कुरान पढ़ जाऊं, कुछ याद रहे ना रहे, साल 2 साल तक आप लोगों को वो चारपाई नहीं भूलेगी, चारपाई नहीं भूलेगी। आप जब भी यहाँ पर आएंगे कोई गदीर की बात होगी। आप कल मौलाना अस्करी साहब लाहौर से आए थे, वो बेचारे पढ़ने आ गए, सैयद ने मेंबर लगाया नहीं था, चारपाई पे बैठे रहे। पैगंबर ने मेंबर जानबूझकर नहीं बनाया ताकि नया प्लानों का मेंबर ऐसा बना दूं। ये अली को भूलेंगे, जब यहां से गुजरेंगे तो ये मिंबर याद आएगा, जब मिंबर याद आएगा तो अली याद आएगा, जब अली याद आएगा तो खुतबा याद आएगा, जब खुतबा याद आएगा तो मैंने कहा होगा जो अली पे शक करता होगा वो लानती है। ये फैसला ये राज था भाई। आप तो मौला के मुहिब हैं, जो नहीं मानता बात उसकी है। आप तो घबरा जाते हैं। मैं बड़ी हैदरी साहब एक और एग्जांपल देते, मेरे बुजुर्ग भी बैठे ए थड़े थे बाहर बह जान 4 बंदे, कल मेरा मोबाइल चुकया गया, कोई चोर है, चोर है, चोर ते लानत। तो जे नचो कोई चोर है ही नहीं तो उन्हें तो मुंह बनाना ही नहीं। उन्होंने कहा जी बेशक लानत जिसने हैदरी भाई आपका मोबाइल चुराया है। अगर अली को मानते हैं, मैं कुरान हदीस से लानत करूं, आप मुंह क्यों बना रहे हैं? जो मुंह बना रहा है इसका मतलब उसके दिल में कुछ चल रहा है, उसके दिल में कुछ और ही है। उसके जो जिसके अंदर और हो बाहर और हो, वो मजमे में मोम बन गया। नबी गए, अली का बाजू बुलंद हुआ, सारा कुछ कह दिया। कहा या अय्युहन्नास फिल इस्लाम तस्फुस्साए ले आदामा वल हव्वा अफसालो अरबी वला अजमी अला अरबी इल्ला बेतकवल्ला इल्ला हल बल्लगत। कोई इस्लाम में पस्त बुलंद काला गोरा अरबी अजमी नहीं है, सारे बराबर है मगर मुत्तकी। मुत्तकी अफजल है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि तक़ाकुम, पारा 26 सूरह अल-हुजुरात। अल्लाह के नज़दीक मोहतरम मुत्तकी है। इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, आकबत भी मुत्तकियों के लिए है। हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान हिदायत भी मुत्तकी को करता है। अब शिया सुन्नी बरेलवी नक्शबंदी अहले हदीस की बात नहीं है, कुरान कहता है हिदायत उसे है जो मुत्तकी हो। सारे मज़ाहिब इस्लाम को चैलेंज है, जाओ पहले तलाश करो कि तुम में जो जो मुत्तकी है, कुरान उसे हिदायत करेगा। अब मुत्तकी है तकवा से, तो तकवा की डेफिनेशन तलाश करो। बादशाह फरमाते हैं सिर्फ मुत्तकी वो हो सकता है जो पंजतन के दामन से वाबस्ता है। वो सिर्फ मुत्तकी वो है, मुत्तकी वो है कि जो अहले बैत के दामन से वाबस्ता है, जुड़ा हुआ। फिर नबी ने फरमाया सुनो, ला तूनी बेनसाबिकुम और तूनी बेअमालिकुम फाकुलिन्नास हाकज़ा फलकुम हाकज़ा इल्ला हल बल्लगत। लोगों मैंने जो पहचाना था वो पहुंचा चुका, तुमने सुन लिया देख लिया। कहा सुन लिया देख लिया। ला तरजौ बादी कफारी मुसल्लीना यमलक बाज़ुकुम रकाबिन बाज़िन इन्नी कद जेतु खलक़तुम इन्नी तारिका फिकुम मुस्तक़िलन किताब अल्लाह व इतरातु अहले बैती मा अंतम सकतुम बेहमा लन तज़ल्लु बादी हत्ता यदा अलल हौल। सारा छोड़ो रैबिक में। मेरे नबी ने फरमाया सुन लो, इस अली को छोड़ के कहीं गुमराह ना हो जाना। अली को जहां पर भी छोड़ दिया तुम गुमराह हो जाओगे, दीन से खारिज हो जाओगे, तुम बहक जाओगे, राह हक से हट जाओगे। अब क़यामत तक के लिए दौरे नबी से लेके आज तक, आज से लेके क़यामत तक जो जो अली से दूर है चलता फिरता गुमराह है, वो गुमराह है। ये है अली। फिर कहा सुनो अल्लाह मौलाई, अल्लाह मेरा मौला है, मैं तुम्हारा मन कुन तो मौला
दुनिया कहती कलमा कहाँ से ले आए, कहाँ से ले आए? ये अली वलीउल्लाह रसूलुल्लाह, अल्लाह मेरा मौला तो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तुम्हारा मौला तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसका मैं मौला अली वलीउल्लाह। हमसे कहते हो कलमा बढ़ा दिया, मैं कहता हूं तुमने गदीर वाला कलमा घटा दिया जो गदीर से मिला है। वहां से हुए। अब रसूल अल्लाह ने मेहनत की, पैगाम पहुंचाया, तो कोई काम करे तो उजरत नहीं होती, तो कुरान में वो उजरत भी लिखी है। मेरे नबी ने, ये हदीस रसूल है कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी, तो नबी तो 2.5-3 घंटे धूप में थे तो कोई चीज़ नहीं मिली। फरमाया हबीब अल यौम अकमलतु लकुम, मैं आज तुझसे राज़ी हुआ, दीन मुकम्मल हुआ। मैं तुझसे राज़ी हुआ, बदर में नहीं, ओहद में नहीं, नमाजें पहुंचाई, राज़ी नहीं हुआ जब तक मेरा नबी अली की विलायत का ऐलान न करे। अल्लाह नबी से राज़ी नहीं होता, मौलवी से राज़ी कैसे होगा? हो गया राज़ी। अब फिर पारा 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 81, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ अख़ज़ल्लाह मिसाक़न नबीना लमा आतैतुमिन किताब व हिकमत सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़न लिमा मअकुम लितुमिनन्ना बिही व लितंसुरन्नहुम क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ठीक है ना जी? हबीबी ने वो वक्त याद कराओ ना जब मैंने एक अहद लिया था कि जब तुम एक मुसद्दिक नबी भेजो उस पे ईमान लाना। जुमला विलायत और रिसालत पे ही होगा जुमला। अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि हर जुमला यहाँ हो, क्या पंखे पे हों। ओ भाई कुछ नोटिफाइड चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी तकारीर रसूल भी करते थे, खुश्क लोगों को बर्दाश्त नहीं होती थी। तो हर मामले में कुछ में नताइज होते हैं, तारीख होती, जांच पड़ताल होती है। अच्छा, अल्लाह ने कहा जब तुम एक मुसद्दिक नबी भेजो उस पे, हैदरी भाई सलाम, उस पे अल्लाह आलिमुल गैब है कि नहीं? अल्लाह जानता था कि मैंने तो आदम के दौर में भेजना ही नहीं, तो जब भेजना नहीं तो कह क्यों रहा है जब भेजूं तो ईमान लाना। देखिए इसी आयत में मैं फिक्र दूंगा, जब तुम एक मुसद्दिक नबी आए तो उस पे ईमान, अल्लाह तू तो जानता है कि इस नबी ने जाना ही आखिर में है, तो ये ईमान कैसे लाएंगे? और अगला बात कहा अगर आ जाए ईमान लाना फिर नुसरत भी करना। ईमान ले आए मदद ना की तो तुम फासिक। फासिक या अल्लाह वैसे ही नबूवतें ले ले, फासिक का लेबल लगा रहा है। अली अली तुम्हें समझ में आएगा बादशाह की विलायत और मुकाम और अजमत क्या है। देखिए मैं शाह साहब बैठे हुए हैं, तौहीद चल रही है, नबूवत और विलायत, अल्लाह नबी अली, इसी दायरे में ही गुफ्तगू रहेगी। खुदा की कसम क्या कहा? नुसरत करना, ईमान लाना। अब कोई नबी ईमान तो ले आए लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की मदद ना करे, एक हिस्से पर अमल है दूसरे पर नहीं, गया भाई नहीं। मुझे सैयद नैयर अब्बास कहें आपने फजाइल के बाद मसाइब पढ़ने हैं तो न्याज 15,000 फजाइल के साथ, तो मसाइब शर्त हुए मैं फजाइल पढ़ के उतर जाऊं, मसाइब ना पढ़ूं कहें किबला शर्त थी मसाइब, अब न्याज नहीं है। ईमान ले आए मदद ना करे, एक हिस्से पे अमल है। यार इससे ज्यादा मैं आसान क्या करूं मेरे भाई? कुरान मजीद है, आयात को ज्यादा से ज्यादा कोट करना मेरी मजबूरी है। ईमान लाना, नुसरत भी करना। अब मैं एक जुमला कहने जा रहा हूं, ये तो चैलेंज है उस लम जजल का अपने अंबिया के लिए कि अगर कोई नबी भी मेरे नबी को छोड़ जाए तो वो नबी नबी नहीं रहता। तो कोई उम्मती 2-4 दिन का कलमा पढ़ के मोहम्मद बुलाता रहे, वो पहाड़ों पर रवाना हो जाए, वो उम्मती कहाँ रहेगा? दिल बोला
मेरे नबियों पर वाजिब, मेरे नबी पर ईमान लाएं। सलामत रहे मेरे भाई। वो ईमान ना लाए तो नबी नबी नहीं। आयत वही की वही है, मुझे तफसील दो। रसूल आए हैं आखिर में, आदम पहले मदद कर नहीं सके, इस आयत की ज़ैल में आ जाएंगे। नूह पहले रसूल बाद में, मदद हुई नहीं, ईमान कैसे आए? और खुदा कहे तुम फासिक हो जाओगे, तुम फासिक हो जाओगे मेरे नबी पर ईमान ला लाए। ये अली के नबी की शान है कि अगर आदम से लेके ईसा तक कोई खत्मियल मर्तबत आमना के लाल पर ईमान न लाए वो नबी नबी नहीं रहता। और उस नबी के अली की ये शान है कि वो नबी अगर गदीर में अली की विलायत ना पहुंचाए तो उसकी अपनी रिसालत नहीं रहती। फिर एक दो आयतें और तो खैर अल्लाह ने पारा 11 सूरह तौबा आयत नंबर 33 हो वल्लाजी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु दीन कुल्लिहि वलौ करहल मुशरिकून। सूरह काफ़ी जिल्द 2। हमने अपने रसूल को दीन और हक के साथ भेजा है। मौला से पूछा, मौला दीन और हक? फरमाया मेरे दादा अली की विलायत। दीन और हक मेरे दादा अल हक को मौल अली व अली मौल हक। दीन शाह अस्त हुसैन। यार खुदा के लिए मैं हरी रहल पे हूँ। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। दीन कौन है? दीन हुसैन है। हक अली है, हक अली है। दीन हुसैन है। जो हुसैन से फिर गया वो बेदीन, जो अली से फिर गया वो बेईमान। आरिफ फजाइल का जुमला और सारे जो नमाज में कहते हो हमें सिरात मुस्तकीम पे कायम रख, चला, दिखा। आखिरी ये भी सोच की बात है। हैदरी साहब 5 साल के थे, मस्जिद में आना शुरू हुए बुजुर्ग के साथ। 60 साल उम्र होगी, 55 साल बाद जमात नमाज पढ़ी। हर रोज कहते हैं सिरात दिखा, सिरात दिखा। देखी नहीं, ये मर गए, जहन्नम की तरफ जाने लगे। इन्होंने कहा अल्लाह 1 मिनट, मैं तो रोज कहता था दिखा, तूने दिखाई नहीं। ये तो अल्लाह को भी अड़ा लेंगे सवाल पे। मेरे अल्लाह मैं नहीं कहता था मुझे दिखा, तूने सिरात दिखाई कहाँ है? मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा और दिखाई है। मैं भी बता के जाऊंगा, दिखा के जाऊंगा और है। देखिए मैं आसान करता हूँ। मैं हैदरी साहब के पास गया एक दिन, केवल 500 रुपये दे दीजिए उधारे। इन्होंने कहा जी 500 रुपये कल आइए। ये जो मेरे, आपका नाम क्या जी? आपका? ज़हीरुद्दीन। ज़हीर साहब ने कहा, मेरा बुजुर्ग अल्लाह ने सलामत रखे, इन्होंने कहा हैदरी साहब मौलाना साहब आए थे। उन्होंने कहा हाँ जी कोई काम था, कर दिया? नहीं। मैं दूसरे दिन भी आया, ज़हीर साहब भी गेट से बाहर निकले। इन्होंने फिर देखा मौलाना आज फिर आए हुए हैं। यकीनन ये पूछेंगे खैर थी। देखिए मेरी दलील को आप रद्द नहीं कर सकते, पूछेंगे यार आज फिर मौलाना साहब आए थे, कल भी खैर थी। ये कहते बस ठीक है। तीसरे दिन मैं फिर आया, ये यकीनन जोर देंगे यार बात तो बताओ क्या है। वो 3 दिन से आ रहे हैं, काम करना है तो हाँ करो, नहीं तो ना करो। मैं कहता हूँ सिरात दिखानी है तो हाँ कर, या अल्लाह या इन्हें ना कर दे। 55 वर्ष से आ रहा है, एक काम तो होना चाहिए। खुदा की कसम यही आयत पढ़ रहे थे अबू जर, और पढ़ते पढ़ते नबी की बारगाह में आ गए। कहा यार रसूलल्लाह सिरात मुस्तकीम क्या है? ये आखिरी फजाइल का जुमला है। और मैं बादशाह अली की दी हुई रिज़्क़ इल्म पर इतना ईमान रखता हूँ और ताकत पर ये पूरा मजमा गूंजेगा। अबू जर ने कहा यार रसूलल्लाह ये सिरात मुस्तकीम क्या है? कि इतने में मुत्तहरिल मुज्तबा ने, मुंजरिल मुर्तज़ा ने, ममूनिल मुक्तदा ने
सिद्दतुल कुबरा ने, हुज्जतुल उज़मा ने, अल मुसबब इलल अली ने, अल मुस्तकीम इलल हुदा ने, शफीकुल नबी अल मुस्तफा ने, लैसुश शरा ने, गैसुन नदा ने, हत्फुल हुदा ने, मफ्ताहुल हुदा ने, कुतबरीहुल हुदा ने, जवाहिरुल लहा ने, सहारुल वगा ने, किताउत तुला ने, व शम्सुज ज़ुहा ने, व बदरुद दुजा ने, मिसल हरून मिन मूसा ने, नजम अहलल हवा ने, इल्मुल हुदा ने, या मुकल्लिब या मुर्तज़ा ने, कदवतुल औसिया ने, इमामुल तकिया ने, सय्यदुन नजबा ने, हादिल औलिया ने, अमीनुल उमना ने, मुर्शदुल उलमा ने, मनकूहुल फुक़हा ने, आलमुल कुरान ने, गुस्सतुल अदा ने, ताहत अदीमुस समा ने, जो आसमान पर शम्सतील है, जमीन पर हम जाहिल है, लूह में कलूम है, कलम में मंसूम है, रिजवान के लिए अमीन है, हुरुल ऐन के लिए असब है, सोबे इब्राहिम में खरबील है, इब्रानी में बल्कतीस है, सुरियानी में शरोईल है, इंदु नबी में नासर है, हिंद में कबकरा है, रूम में बतरीस है, अरमन में फरीक है, सकलाब में फैरोक है, इंदु शरकैनुल मौत में अल्लाहमर है, इंदु फलासफा में यूशे है, इंदुल कोहना में बवी है, इंदुल हबशा में तबरीक है, इंदुल जन्न में जबी है, तुरैत में एलिया है, ज़बूर में इलिया है, अंजील में बरिया है, सोएब में हुजरुल ऐन है, कुरान में अली है, कहीं ऐनुल्लाह है, कहीं लिसानुल्लाह है, कहीं वजहुल्लाह है, कहीं जुम्बुल्लाह है, कहीं मरज़तुल्लाह है, कहीं मशीयत इलाही है, कहीं हैबत इलाही है, कहीं जलाल इलाही है, कहीं करम इलाही है, कहीं नूर इलाही है, कहीं ज़हूर इलाही है, कहीं काबे का वारिस है, कहीं बतूल का शौहर है, कहीं रिंदों का शहंशाह है, कहीं अल्लाह की हैबत का वारिस है, कहीं करम इलाही है, कहीं मशीयत है, कहीं हुज्जत है, कहीं इंशा है, कहीं मंशा है, कहीं बुरहान है, कहीं कुरान है, कहीं हादी है, कहीं हिदायत है, कहीं करीम है, कहीं कर्म है, कहीं नूर है, कहीं ज़हूर है, पूरे मजमे की तवज्जो, कहीं आदम का इल्म है, नूह का इल्म है, ईसा का ज़हद है, मूसा की हैबत है, रिंदों का शहंशाह अली ने दाहिना कदम मस्जिद नबवी में रखा। पैगंबर ने अबू सर की कलाई थाम के कहा, कई दिनों से पूछ रहा है सिराते मुस्तकीम सामने देख, जिस कुरान वाली सिरात को तू देखता है अबू तुराब आ गया। शेर और ख़त्म। सलामत रहे आप, अल्लाह को सलामत रहे। करोड़ दुआएं आपके लिए कर रहा हूँ जितने मोमिन नजर। यह है सिरात मुस्तकीम। दुनिया तो 3-4 लक़ब चुराए फिर रही है अली के मुकाबले में। हमारे पास आओ, हम तुम्हें अपने मौला के अलकाबात बताएं। खुदा की कसम, अगर दुनिया मोहम्मद और अहले बैत को समझ जाती, रसूल की बेटियां कभी जंगलों में बयान न करती। तेरे छठे इमाम का फरमान है, मेरे दादा के गम में हाय करके रोया करो। अल्लाह को ऊंची हाय करके गम हुसैन में रोना बहुत पसंद है। हुसैन और आलिया सैन ज़ैनब मक्का में बैठकर आपस में मशवरा कर रहे हैं। हुसैन ने कहा, बहन जी भाई, तुझसे एक सलाह चाहता हूँ। बोलिए भैया। कहा, नाना के पास था एक अली, मेरा नाना कोई जंग हारा नहीं है। मेरे पास हैं 4 अली। बहन अगर करबला ले गया तो मैं मजलूमियत की जंग नहीं जीत सकता, मैं मजलूम हूँ। भाई तो क्या करेगा? बहन, चारों की ताकत को तकसीम करूंगा। हनफिया को भेजूंगा वापस मदीना, मुस्लिम बन के जाएगा मेरा सफीर कूफा। अगला जुमला सुनना, सज्जाद जाने, हुसैन जाने, अब्बास जाने, तू जाने। अल्लाह मेरे भाई तेरी हाय कबूल करे। सदात उज़ाम जितनी तशरीफ फरमा है, जितनी मेरी माए बहनें, मौला तुम्हें सोए गम हुसैन के कोई गम ना दे। बुलाया गया अमीर मुसलम को। हुसैन बादशाह फरमाते हैं, मुस्लिम जी मौला, सफीर को 2 गवाहों की जरूरत होती है। मेरी भरी फौज में से
जो गवाह लेके जाना चाहता है तुझे इजाजत है। मुस्लिम निगाहों को झुका के कहता है मौला तेरे साथ बहनें हैं, तेरे साथ बहनें हैं, मैं तादाद कम क्यों करूं, मेरे पास गवाह के तौर पे 2 बच्चे जो हैं मोहम्मद और इब्राहिम, मौला मैं इन्हें साथ ले जाऊंगा। खुदा हाफिज कहा, आ गया अमीर मुस्लिम कूफा में, 18,000 लोग बैत के लिए आ गए। सहाबे रहमत किताब है। खुदा की कसम सैयद में पढ़ रहा था, मगरब की नमाज पढ़ी, 30 बंदे रह गए, बाजार में आए 10 रह गए, तवा के दरवाजे पे आए तो मुस्लिम तनहा रह गए। कितनी बेवफाई की। अदादारों में पूछना यह चाहता हूं, कोई अनजान शहर में चला जाए जिसका जानने वाला भी कोई ना हो, गलियां तंग हो, दुश्मन उसकी तलाश में हो, वो जाए तो जाए कहां। अमीर मुस्लिम तवा के दरवाजे पे बैठ गए। तवा का बेटा हंगाम में बाहर गया हुआ था। तवा दरवाजे पे आई तो देखा मुस्लिम बैठा है। तवा कहती है जवान अपने घर चला जा, तुझे पता नहीं है इब्ने ज़ियाद के फौजी कुत्तों की तरह हुसैन के सफीर की तलाश में है, कहीं तुम मारा ना जाए। सैयदो हम मातम करोगे। तेरे अमीर मुस्लिम मौला ने अपने घुटनों से सर उठाया और तवा की तरफ देख के कहते हैं, तवा पहचान वो सफीर हुसैन मैं हूं। तवा पहचान। तवा ने कहा मौला आप अमीर मुस्लिम है, मौला मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। फौरन दरवाजा खोला, पानी पिलाया, अंदर हुजरे का दरवाजा खुला, अमीर मुस्लिम अंदर गए। कह दे मौला खाना लाऊं? मुस्लिम ने इशारा किया खाना नहीं, बस मसल्ला बिछा दे, मुझे इबादत करनी है। अमीर मुस्लिम इबादत करते गए जिस तरह हुसैन ने सारी रात इबादत की थी। रात के आखिरी हिस्से में मुस्लिम की आंख लग गई कि अली कहते हैं मुस्लिम जल्दी आजा तेरा इंतजार कर रहा हूं। रसूल अल्लाह कह रहे थे मुस्लिम आजा तेरा इंतजार कर रहा हूं। बस अदादारो मुखबरी हो गई, दरवाजे पर फौजें आ गई और घोड़ों की टापों की आवाजें अमीर मुस्लिम के कानों तक पहुंची। अमीर मुस्लिम ने तलवार हाथ में लेके एक जुमला कहा, जानते क्या कहा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चे अल्लाह तेरी हाय कबूल करे, मौला तुझे सलामत रखे। अज़ादारो अमीर मुस्लिम तलवार लेके बाहर आए। तवा ने हाथ जोड़ के कहा मौला बाहर है दुश्मन, तू बाजार में न जाना। मुस्लिम कहता है तवा तुझे क्या हो गया है? मुझे गवारा नहीं है तेरे घर में कोई गैर महरम आ जाए। मैं कहता हूं मौला आपको गवारा नहीं है कि तवा के घर में कोई गैर महरम आ जाए। हाय शामे गरीबा के सजदे सज्जाद बिस्तर पर है, बीबी ज़ैनब के खैमे में नेज़े लेके हरामजादे आ गए और कहते थे लूटो लूटो। तबरकात अली व बतूल कैदी बना के ले चलो आले रसूल। अजरुकमिनल्लाह। अज़ादारो अमीर मुस्लिम बाहर आए, जंग शुरू हो गई। अमीर मुस्लिम हमले पे हमले करते गए, कमक के कमक आती गई। कहीं 2000 का दस्ता, कहीं 5000 का दस्ता, फिर 2000 का दस्ता। अज़ादारो इब्ने ज़ियाद ने कहा एक आदमी के लिए इतनी फौज मंगवा रहे हो? पैगाम भेजा गया वो हाशमी खून है, कोई आम नहीं है। मैं अब जुमला कैसे कहूँ? उसने कहा कि तुम जानते हो हाशमियों को जब भी मारा है धोखे से मारा है। अज़ादारो धोखा क्या था? धोखा ये था एक गड़ा खोद दिया गया, ऊपर कपड़ा बिछाया गया, कपड़े से रस्सी बांध दी गई। इधर मुस्लिम हमला करते आ रहे थे, जैसे ही गड़े के करीब आए ना अज़ादारो कपड़ा हटा दिया गया, मुस्लिम गड़े में गिर गए। पर गड़े में गिरना था, किसी ने तलवार, किसी ने पत्थर, किसी ने आग फेंकी। अज़ादारो अमीर मुस्लिम से कहा गया मुस्लिम तुझे अमान है, तलवार हमें दे दे। मुस्लिम ने तलवार दे दी। मुस्लिम को पकड़कर एक खच्चर पे सवार किया गया। खुदा की कसम मैं मक्तल में पढ़ रहा था, मुस्लिम खच्चर पे सवार होके जा रहे थे। हरामजादा कोई दाएं से मेरे मौला के तलवार मारता था, कोई पत्थर मारता था। हुक्म हुआ कि जल्लाद को जल्दी से मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे
में ले जाओ। इधर दारुल अमारा की छत पे पहुंचे, उधर हुसैन इब्ने अली मंजिले शौक पर पहुंचे। हुसैन जल्दी से मोहम्मद को बिठाकर नीचे उतरे, मुसल्ला इबादत पे आए और कह रहे थे मुस्लिम मेरा भी तुझ पे सलाम। जैसे हुसैन के सलाम की आवाज आलिया हुसैन ने सुनी, जल्दी से मोहम्मद से बाहर आई, जल्दी से आके कहती हुसैन भैया इस मैदान में सहरा में किसके सलामों के जवाब दे रहे हो? हुसैन कहते हैं अब्बास तू दाया, ज़ैनब तू बाया, मेरी दो उंगलियों में देख। बीबी कहती भाई देख रही हूं कोई जवान है जिसका सीना तना हुआ है, गले में तौग है, हाथ उसके बंधे हुए हैं, उसे किसी मकान की छत पर लेके जा रहे हैं। हुसैन की आंखें नहीं थी, सावन का बादल था। रो के हुसैन कहते हैं ज़ैनब ये और कोई नहीं मेरा सफीर मुस्लिम है, बच के नाम आया। अब्बास तड़प के कहते हैं मौला मुझे इजाजत दे मैं कूफा पहुंचूं। हुसैन ने कलाई थामी, कहा भी नहीं। अब मेरे मौला कूफे की छत की तरफ सीढ़ियों से जा रहे हैं, मुस्लिम की आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक बंदा बराबर में आके कहता है मुस्लिम तू तो जवान है, आश भी है, लेकिन रो क्यों रहा है? क्या मौत से डर गया? ये जुमला बुजुर्गों में कैसे कहूं? कहा मौत से डर गया। मुस्लिम कहते मौत से नहीं डरा, मैं खत लिख चुका हूं हुसैन को, बहनों के साथ मेरा मौला करबला आ रहा है। मैं कहता हूं मौला इधर कूफा की तरफ डाला, मौला ये गद्दार है। अदादारो हुक्म हुआ, इधर सर कलम हुआ, सर का कलम होना था। अब्बास ने कहा मौला मुझे इज़्ज़त दे मैं जल्दी से जाऊं अपने भाई का सर आगोश में लूं। हुसैन ने कहा उंगलियों में देख एक ज़ईफा है जिसकी पसलियां टूटी हुई है, पसलियां टूटी हुई है। झोली फैला के कहती है आ मुस्लिम माँ लेने आई है। मैं कहाँ रहूं? मुस्लिम दारे वाली से कूच कर गए। इधर मुस्लिम की जोड़ी है, उन्हें तकदीर ले आई हारिस के घर में। अदादारो जिस तरह तवा मोमना थी ना, इसी तरह हारिस मलाउन की जौजा भी मोमना थी। उसने पेशानियों के बोसे लिए, पेशानियों के बोसे लेके बच्चों के लिए बिस्तर बना दिए, बिस्तरों का बनना था, खाना रखा। बच्चों ने भी वही जुमला कहा जो मुस्लिम ने कहा था, खाने की जरूरत नहीं है, जो नमाजें कज़ा हो गई हमने अदा कर ली। जो नमाजें मुसलमानों के खौफ से कज़ा है अभी हमने वो अदा करनी है। बस अदादारों दोनों बच्चे सो गए, छोटे की आंख खुली। छोटा कहता भैया मुझे अलहदा नींद नहीं आ रही, लगता है आज की रात हमारी आखिरी रात है। छोटे ने बड़े के गले में, बड़े ने छोटे के गले में। ये मैं जुमला अपनी माँ बहनों की नजर कर रहा हूँ, उन बुजुर्गों की नजर जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों की मोहब्बत बड़ी होती है। अदादारों इतने में हारिस मलाउन घर आया, रात का वक्त था। जौजा ने दरवाजा खोला, कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। कहता जल्दी से चाबी तो ला, जल्दी से चाबी ला, मुझे कुफल खोलना है, दरवाजा खोलना है, ताला खोलना है। कमरे में कौन है? जौजा ने कहा कोई नहीं है। इसने तलवार निकाली, तलवार की दस्ती से ताला तोड़ा है। अब मेरी तरफ देखना अदादारो, हाथ बांध कर सजदों से माफी मांग के जुमला कह रहा हूं। अदादारो हरामजादे ने इस तरह हाथ को मारना शुरू किया। दाएं हाथ में छोटे का सर आया, बाएं हाथ में बड़े का सर आया। इसने जुल्फों से उठाया है, छोटे को छोड़ा, बाएं के तमाचा मारा। अदादारो बायां तमाचा लगना था, बड़ा जमीन पे गिर गया। छोटे को उठाया, दाएं से तमाचा मारा, वो जमीन पे गिरा। दोनों को सतून के साथ बांधा, सारी रात खड़े रहे। मोमना तड़पती थी, कहती थी ने खोल दे, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे मेहमान हैं, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है। अगले दिन हरामजादे ने घोड़े पे खुद सवार हुआ, सवार होके बच्चों की जुल्फों में हाथ डाला। अदादारो ऐसे ही उठाया तो अब घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। मुझसे पूछोगे नहीं कि मौलाना बच्चों के कदम कहां थे? जमीन पे नहीं थे, बच्चों के कदम हवा में थे। अदादारो ले आया दरिया के किनारे, कहता है बताओ पहले किसने कत्ल होना है? बड़ा कहता है मेरी माँ समझाया करती थी बड़ा बाप की जगह होता है, बाप हमेशा कुर्बानी देता है। छोटा कहता तू पीछे हट जा। आगे जाके कहता है छोटा मेरी माँ ने कहा है छोटा बेटा होता
होता है। बाप पे मुश्किल आए तो पहले छोटा कुर्बान होता है। पहले मुझे मार, अज़ादारो हरामजादे ने तलवार चढ़ाई है, बड़े का सर कलम किया, धड़ जमीन पे गिरा, धड़ को उठाया दरिया में फेंका है। मुझे खुदा की कसम है, कसमें उठा रहा हूं इसलिए के गवाह बना रहा हूं। अब्बास की बहन को लाहौर वाली बीबी शहीदों की तरफ से पुरसा ले, आजादारों की तरफ से पुरसा ले, हमारी तरफ से पुरसा ले। छोटा जमीन पे बैठ गया, जमीन पे बैठा, छोटा कांपना शुरू हुआ। ये हालत हरामजादा कहता है बच्चे तू खड़ा क्यों नहीं होता? छोटा कहता है तेरी तलवार से डर रहा हूं, तू मारेगा मुझे। कहता कत्ल तो मैंने तुझे करना ही है। आजादारों अब कैसे बताऊं, जहां पर बड़े की लाश फेंकी थी वो आगे नहीं गई है, छोटे का इंतजार कर रही थी। इस हरामी ने वार किया, छोटे का सर कलम हुआ, दरिया में फेंका। दोनों भाई मिले, जिस तरह इसके घर में बाहों में गले में बाहें डाली थी, हरामजादे ने तलवार निकाली, दरिया में दाखिल हो गया, वार करने शुरू किए। कोई बीबी है, पसलियां टूटी है, हाथ यहाँ पर है, कहती है हारस हया कर, मेरे मरे हुए बच्चों पर तो जुल्म न कर। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातमे हुसैन या